तो राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, देखिए नेशनलिज्म टर्म से हमारा क्या मतलब है कि जब दिस इज अ फीलिंग ऑफ यूनिटी और द फीलिंग ऑफ इंटीग्रिटी टुवर्ड्स द नेशन और फीलिंग ऑफ लॉयल्टी टुवर्ड्स द नेशन इज कॉल्ड नेशनलिज्म. If we say in normal words, then what is nationalism? The feeling of loyalty towards the nation, or it is the ideology of the nationhood. If you feel connected to the nation, then it is called nationalism. Got it? Got this? Now before the 18th century, देखिए एक बात गौर कीजिए, before 18th century there was nothing, there was no ideology known as nationalism. There was nothing like nationalism existed before 18th century. But what happened, there was a kind of monarchy, there was feudal system. कुछ कुछ चीज़ें मैं लिख रहा हूँ जो ये हम पूरे यूरोप के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं. देयर वॉज मोनार्की इन होल यूरोप. ठीक है, मोनार्की बोलते हैं मतलब मोनो मतलब होता है एक, सिंगल और आर्की मीन्स द रूल. If single person rules the whole territory, then it is called monarchy. ठीक है, and it is based upon heredity. If the ruler is currently ruling the state, then the next ruler will be his son. So it is inheritary. Hereditary. ठीक है, तो monarchy. Then it was more or less dictatorial rule. Dictatorial rule. ठीक है, अगर आपको क्लास 9th का कॉन्सेप्ट याद है, लुइस 16 वॉज रूलिंग फ्रांस. देखिए कुछ कुछ कॉमन स्टेट्स के बारे में, यूरोप है तो यूरोप के कुछ नेशंस के बारे में बात करेंगे इस चैप्टर में हम लोग. फ्रांस हो गया, इटली हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, ठीक है, जर्मनी हो गया, फिर बाल्कनाइजेशन ऑफ द स्टेट वो हम एंड में पढ़ेंगे. तो दीज आर द सम स्टेट्स अबाउट विच इटली इज वेरी वेरी प्रोमिनेंट स्टेट अबाउट विच वी विल डिस्कस. सो 18th सेंचुरी के पहले यानी 17th सेंचुरी या 16th सेंचुरी के अगल बगल देयर वाज नथिंग कॉल्ड नेशनलिज्म. बट व्हाट हैपेंड इन 18th सेंचुरी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन 1789 द फ्रेंच रेवोल्यूशन टुक प्लेस. ठीक है, 1789 फ्रेंच रेवोल्यूशन टुक प्लेस एंड इन दिस रेवोल्यूशन व्हाट हैपेंड, three words were introduced. These were liberty, equality and fraternity. These were the three words which was introduced during the French Revolution. Liberty का क्या मतलब होता है? उस समय लिबर्टी का कॉन्सेप्ट बहुत नैरो था, अभी के जैसा नहीं था कि लिबर्टी मीन्स राइट टू वोट टू ईच एंड एवरी सिटीजन, है ना, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू हैव एसेट. इतना ज़्यादा ब्रॉड नहीं था लिबर्टी का मतलब. लिबर्टी का मतलब था फ्रीडम फ्रॉम कॉन्स्ट्रेंट्स. देयर विल बी नो एनी काइंड ऑफ suppression or the pressure from the state government to rule or to manage the day to day affairs, है ना. इस रिस्पेक्ट में उनको लिबर्टी चाहिए थी. तो दैट इज व्हाई इट वाज लिबर्टी. इक्वालिटी, उस समय जो सोसाइटी थी यूरोप की दैट वाज हाईली इनइक्वल. हाईली अनइक्वल का क्या मतलब होता है? देयर वाज द कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन फ्यू हैंड्स एंड the distribution of the resources was very, the distribution of resources was very kind of unequal distribution of resources we can say. तो इस वजह से फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ 1789 में और जो लुइस 16 था उसको ओवरथ्रोन कर दिया गया. एंड देन द गवर्नमेंट वाज फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ डेमोक्रेसी एंड द सोशल रिपब्लिक. ठीक है, तो the chapter Rise of Nationalism in Europe is your first chapter, which begins with a painting drawn by Frederick Sorrow. ठीक है, आपने अपने हिस्ट्री बुक में भी देखा हुआ है ये पेंटिंग. एक्चुअली फ्रेडरिक सोरो was the French artist. He painted three paintings. The series of four paintings he painted, and by all those four paintings he tried to give message to the world that the whole world is changing.
in which direction the world is changing, the democracy is being adopted by most of the nations, equality is going to prevail in throughout the world, then freedom, okay, liberty will be availed to each and every citizen. So in that painting you can see the people having flag of different nations, showing that they have their own separate national identity, they have their own national flag in their hands. Then the march is being led by the Switzerland and the USA, if you can see in that painting. Then it is followed by the France and then Germany is there, sorry, France के बाद रशिया है, फिर जर्मनी है. So this is showing a sequence of the countries in which they got they got independence, or rather we can say they got liberty and equality in their society. ठीक है, तो उस हिसाब से इसने फ्रेडरिक सोरो ने ये पेंटिंग ड्रॉ की. फिर आता है फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन. व्हाट वाज फ्रेंच रेवोल्यूशन? इट वाज it took place in 1789, as I mentioned the date, the year here. 1789 में क्या हुआ? फ्रेंच रेवोल्यूशन में 3 वर्ड्स वर इंट्रोड्यूस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी. तीनों का मतलब, फ्रेटर्निटी का मतलब होता है ब्रदरहुड, ठीक है, ब्रदरहुड. देखिए, लिबर्टी और इक्वालिटी तो क्लियर है, but why fraternity was introduced during French Revolution? Because this was showing a sense of unity among the people of France. They were united by means of cultural heritage, by means of common culture, by means of historical ancestry, by means of historical evidences. They all felt united. That's why they fought the revolution in unity, and then they formed the government based on democratic principles. ठीक है, तो 1789 में they introduced 2 more terms that called la patrie and la citoyen. La citoyen मतलब होता है citizens, ठीक है. They introduced the concept of citizens, ठीक है, and la patrie corresponds to the kind of property. ठीक है. So these were the 2 terms which was introduced in the French Revolution. Fine. This was the property. La patrie was the property. It is also called fatherland. Fatherland, why not motherland? Because that time the female were not that much equal to the men. They were discriminated. There were not much rights given to them. That is why it is fatherland. So fatherland का concept क्या हुआ? It is simply showing that property rights. ठीक है, अभी मैं थोड़ा सा बताता हूँ why this was important. देखिए क्या होता था पहले, फ्रेंच रेवोल्यूशन के पहले it was believed that the entire property of the state was belonged to the king. But what happened after French Revolution? This property right was given to the common people. That is why the term la patrie was introduced. That means if my father is owning this particular land, then I will also own this particular land by means of this concept. Okay, what is la citoyen? La citoyen simply means that it is the concept of citizenship. All the people living in a definite territory or inside a definite territory will be द सिटीजन ऑफ फ्रांस. ठीक है, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट डिराइव हुआ. फिर नेपोलियनिक कोड आता है 1804 में. आई थिंक द बोर्ड इज विजिबल एंड यू कैन हियर मी. फाइन, यू कैन हियर मी. नेपोलियन, देखिए यही सारी चीजें आपको पढ़नी है और इसी से क्वेश्चंस भी बनेंगे. ठीक है, दे कैन आस्क यू which among the following terms is not associated with the French Revolution. वो दे देंगे ला पैट्री, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, ला सिटोयन, और चौथा में वो दे देंगे चौथा में मे बी वो लोग दे देंगे सेक्युलरिज्म. दे मे गिव,
ठीक है. सो सेक्युलरिज्म विल नॉट बी द करेक्ट आंसर. द करेक्ट सॉरी विच ऑफ द टर्म इज नॉट एसोसिएटेड विथ फ्रेंच रेवोल्यूशन. सो द आंसर विल बी सेक्युलरिज्म बिकॉज देयर वाज नो मेंशन ऑफ सेक्युलरिज्म इन दिस होल सिनेरियो. ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस ही बनेंगे. ठीक है, नेपोलियनिक कोड 1804 में आया. देखिए ऐसा तो 1789 में इन लोगों ने डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल पे गवर्नमेंट वगैरह इस्टेब्लिश कर दिया. बट अगेन व्हाट हैपेंड, 1789 में गवर्नमेंट इस्टेब्लिश किया और 1799 में नेपोलियनिक अटैक्ड ऑन द टेरिटरी ऑफ फ्रांस एंड ही कैप्चर्ड. एक बात समझिए कि नेपोलियन ने जो कैप्चर किया, तो नेपोलियन वाज द डिक्टेटोरियल काइंड ऑफ डिक्टेटोरियल, ही वाज द मोनार्क, है ना, सिंगल पर्सन रूलिंग. बट इनके यहाँ पहले डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट था. तो नेपोलियन ने क्या किया, एक कोड इंट्रोड्यूस किया, दैट इज ऑल्सो नोन एज नेपोलियनिक कोड. इस कोड में नेपोलियन ने कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस लाए. वो प्रोविजंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो थोड़ा सा उसके नेपोलियनिक कोड के प्रोविजंस देखिए क्या क्या ये लेकर के आया नेपोलियन. द फर्स्ट प्रोविजन विच ही इंट्रोड्यूस्ड वाज there will be no birth based privileges. ठीक है, ये सब कुछ मैं पढ़ा चुका हूं. बर्थ बेस्ड कोई प्रिविलेजेस नहीं होगा. ऐसा नहीं होगा कि राजा का बेटा है तो वो जन्म से ही राजा बनेगा, ऐसी कोई बात नहीं होगी. everything whatsoever will anyone will attain, that will be on the basis of his knowledge, that will be on the basis of his achievement, his the skill which he is having. तो उस बेसिस पे जो कुछ जो अचीव कर पाएगा वो करेगा. देयर विल बी नो बर्थ बेस्ड प्रिविलेजेस, नो बर्थ बेस्ड प्रिविलेजेस. ये नेपोलियन ने इंट्रोड्यूस किया. सेकेंड इंट्रोडक्शन वाज नेपोलियन, नो बर्थ बेस्ड प्रिविलेजेस. सेकेंड इंट्रोडक्शन वाज राइट टू प्रॉपर्टी. राइट टू प्रॉपर्टी वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय नेपोलियन. ठीक है, इसके पहले राइट टू प्रॉपर्टी वॉज नो हैविंग नो लीगल डॉक्यूमेंटेशन. बट पहली बार नेपोलियन ने राइट टू, उसने कह दिया कि जिस ये जो है ना ला पैट्री का जो कॉन्सेप्ट है, जिसके पास जो प्रॉपर्टी है वो उसकी अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी है, ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी वॉज गिवन. उसके बाद नेपोलियन ने और क्या इंट्रोड्यूस किया, ही इंट्रोड्यूस्ड द स्टैंडर्ड वेट एंड द मेजरमेंट यूनिट. He introduced a standard weight and measurement unit. ठीक है, स्टैंडर्ड वेट एंड मेजरमेंट यूनिट को इसने इंट्रोड्यूस किया. उसने और नेपोलियन ने क्या किया, ही इंट्रोड्यूस्ड रिफॉर्म इन द मार्केट मैकेनिज्म. He introduced reform in market mechanism. ठीक है, तो these were the few initiatives which was undertook by Napoleon in 1804 कोड. फिर नेपोलियन को भी हटना पड़ा, है ना, नेपोलियन की भी डिफीट हो गई. उसके बाद क्या हुआ, 1804 यानी कि हम 19th सेंचुरी में पहुंच चुके हैं. हमने स्टार्ट कहां से किया था, 1789 यानी कि 18th सेंचुरी. द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी से हमने स्टार्ट किया था अपनी स्टोरी. अभी तक हम लोग 19th सेंचुरी की स्टार्टिंग में पहुंच गए हैं. अब नेशनलिज्म इन यूरोप. देखिए, नेपोलियन के जाने के बाद अ सेंस ऑफ नेशनलिज्म स्टार्टेड इन द होल यूरोप. इसके बाद क्या हुआ, नेपोलियन के जाने के बाद अगर मैं आपको बताऊं, अ न्यू मिडिल क्लास स्टार्टेड राइजिंग. ठीक है, यहां तक क्लियर है, नेपोलियन तक में कोई डाउट नहीं है. ठीक है, उसके बाद अ न्यू मिडिल क्लास वॉज emerging. Why this new middle class? Can you tell me? In the whole Europe, the new middle class was emerging. What was the reason? जो मैं लिखवाते जा रहा हूं, जो मैं बोर्ड पर लिखते जा रहा हूं, उसको आपको नोट भी करते जाना है. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन.
Industrial Revolution. Industrial Revolution took place primarily in the Britain, that is in Great Britain. It took place first of all, and slowly and steadily it spreaded all over the Europe. So in the whole Europe, industrialization was taking place, and due to this industrialization, a new group of people emerged, and that group of people was the capitalists. Those who were having the capital. ठीक है, तो capitalists emerged. Now this capitalist group was nothing but the middle class. देखिए, मिडिल क्लास ग्रुप में कौन कौन से लोग आ सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल द कैपिटलिस्ट्स, मैंने एक एग्जाम्पल दे ही दिया. फॉर एग्जाम्पल लॉयर्स, टीचर्स. अभी तक लोगों के पास पैसे नहीं होते थे. दे वर नॉट हैविंग मनी टू इन्वेस्ट ऑन एजुकेशन. दे वर नॉट हैविंग मनी. देयर वाज नो एनी काइंड ऑफ दैट डिस्प्यूट बाय विच कुड नॉट बी सॉल्व्ड बाय individual interaction, so they did not need lawyers before. But due to the industrialization, there were so many conflicts and disputes started, not only between the state and the citizen, but the citizen among themselves also. ठीक है, so lawyers. और कौन कौन से लोग हो सकते हैं इसमें? जैसे कोई प्रोफेशनल हो गया, प्रोफेशनल्स, फॉर एग्जाम्पल पेंटर्स हो गए, फॉर एग्जाम्पल क्राफ्ट्समैन हो गया. तो इंडस्ट्रियलाइजेशन से ये एक न्यू मिडिल क्लास एमर्ज हुआ. पीपल स्टार्टेड गेनिंग एजुकेशन, पीपल स्टार्टेड गेनिंग द साइंटिफिक नॉलेज. इससे क्या हुआ? दे स्टार्टेड रेजिंग क्वेश्चन इन फ्यू एरिना ऑफ द सोसाइटी. दे स्टार्टेड क्वेश्चनिंग द गवर्नमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल, बिकॉज दे वर एजुकेटेड. ठीक है, अगर उनको कोई राइट नहीं, गवर्नमेंट्स फॉर राइट्स. पहले अभी मैंने बताया आपको कि जो राजा होता था उसके पास सारा का सारा पावर होता था. ठीक है, तो पावर जब सारा का सारा उसके पास होगा तो वो अपने मन से सारे के सारे इंडस्ट्रीज को रेगुलेट करेगा, मार्केट को रेगुलेट करेगा. जो उसको जिस तरह से मार्केट को अरेंज करने का मन हो वैसे करेगा. हो सकता है कि प्राइवेट ओनरशिप वालों को उतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिले, राजा को बहुत ज़्यादा उसको टैक्स देना पड़े. ठीक है, या फिर अपने प्रोडक्ट्स को अगर बेचना है किसी और कंट्री में तो उसको टैक्स या कस्टम्स देना पड़े. तो उस रिस्पेक्ट में इनको काफ़ी प्रॉब्लम होने लगा, ये जो न्यू मिडिल क्लास एमर्ज कर रहा था. सो दे हैड इश्यूज विद द राइट्स, है ना. तो दे स्टार्टेड डिमांडिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ राइट्स. फॉर एग्जाम्पल दे स्टार्टेड डिमांडिंग द वोटिंग राइट्स. उन्होंने कहा कि जब हम पैसा दे रहे हैं स्टेट को, जब हमारी वजह से पूरा स्टेट चल रहा है, तो क्यों नहीं, तो राजा अपने मन से किसी दूसरे को राजा कैसे बनाएगा? वी आर द पर्सन हु विल वोट, एंड वी ईच ऑफ अस हैज टू बी प्रोवाइडेड द राइट टू वोट so that we can exercise our right and we can establish the government. So they started demanding voting rights, they started demanding property rights, है ना. they started demanding property rights. फिर उसके बाद और भी कई तरह के राइट्स डिमांड होना शुरू हो गए. फॉर एग्जाम्पल राइट टू फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ जर्नलिज्म, है ना, फ्रीडम ऑफ असेंबली, फॉर्मेशन ऑफ असेंबली, फ्रीडम ऑफ राइट टू फॉर्म यूनियंस. ये सारे डिमांड्स इन लोगों के स्टार्ट होने लगे. फिर दे ऑल्सो स्टार्टेड डिमांडिंग विथ रिस्पेक्ट टू द इकोनॉमी, इकोनॉमिक्स के रिस्पेक्ट में भी उन लोग. मैं ये सारी चीज़ें क्यों बता रहा हूँ आपको? क्योंकि ये आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में दिया जा सकता है कि द राइजिंग मिडिल क्लास हैड द फॉलोइंग डिमांड्स, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द डिमांड ऑफ द राइजिंग मिडिल क्लास. तो उस समय आपको टिक करना पड़ेगा. ठीक है, तो नेशनलिज्म इन यूरोप स्टार्टेड. देन एरिस्टोक्रेसी. एरिस्टोक्रेसी किसको बोलते हैं? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एरिस्टोक्रेसी? एरिस्टो मतलब होता है फ्यू,
क्रेसी मतलब होता है रूल, व्हेन फ्यू पीपल having the capitals will start ruling the whole country or the territory or the society, then it will be called aristocracy. तो aristocracy में few elite people will only rule, ठीक है। और न्यू मिडिल क्लास जो था वो एलिट तो था नहीं, उतना ज़्यादा भी है ना एडवांस नहीं था, तो इकोनॉमिक मामले में उतना भी एडवांस नहीं था। तो एरिस्टोक्रेसी और न्यू मिडिल क्लास, इन दोनों के बीच में एक तरह का टसल स्टार्ट हुआ। एरिस्टोक्रेसी वर मोर एंड मोर कंजर्वेटिव बाय नेचर, ये लोग कंजर्वेटिव्स थे। कंजर्वेटिव का क्या मतलब होता है? दोज हु डू नॉट बिलीव इन द चेंज, और इफ दे बिलीव देन दे डू नॉट वांट द रैपिड चेंज, दे वांट द स्लो चेंज, they prefer the old system, they do not want to change the whole market mechanism, they want to retain the ancestral system or the ancestral values in the society. They do not want the complete overhaul of the society. But what new middle class were demanding, they were demanding for the market mechanism, the total reformation in the market, ठीक है, कि प्रॉपर्टी राइट्स हो, ऐसा ये नहीं चाहते थे। दे वांटेड टू मेंटेन द हायरार्की, दे वांटेड टू मेंटेन द हेजीमनी। ये सब मैं वर्ड बोल रहा हूँ, आपको समझ आ रहा है? हायरार्की, ये सब दे कैन बी आस्क्ड डायरेक्टली, क्योंकि हिस्ट्री में आपके चैप्टर एक ही चैप्टर है, और इससे कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन बनेगा। तो और वो उस तरह के ऐसा तो आएगा नहीं कि व्हेन वाज द नेपोलियनिक कोड वाज इंट्रोड्यूस्ड 1804, वो थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन देंगे। आप देखिए सैंपल पेपर में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, गेटिंग। वो पूछ देंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय नेशन स्टेट, ठीक है, वो, और उसके बाद वो 3-4 ऑप्शन दे देंगे। वो हो सकता है आपसे पूछ दे कि विच अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट इंक्लूडेड इन द नेपोलियनिक कोड, तो इस तरह के क्वेश्चंस देंगे वो आपको। फिर विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द डिमांड्स ऑफ द न्यू मिडिल क्लास, ठीक है, तो इस तरह से। फिर इसको हायरार्की, दे वांटेड टू मेंटेन द हायरार्की, दे वांटेड टू मेंटेन द हेजीमनी, ठीक है। तो ये एरिस्टोक्रेटिक यानी कंजर्वेटिव लोग चाहते थे, बट न्यू मिडिल क्लास वांटेड द कंप्लीट रिफॉर्म इन द मार्केट सिस्टम, कंप्लीट रिफॉर्म इन द इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ द होल यूरोप, ठीक है। फिर इस वजह से, क्योंकि न्यू मिडिल क्लास लोग का डिमांड काफी ज्यादा बढ़ गया, तो लिबरल नेशनलिज्म स्टार्टेड। व्हाट इज द लिबरल नेशनलिज्म? देखिए इसका एक डेफिनेशन एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो वो भी आपको समझना है, क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि लिबरल नेशनलिज्म मीन्स, और 4 वो ऑप्शन दे देंगे कि व्हाट इज द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ द लिबरल नेशनलिज्म। तो थोड़ा सा आप समझिए लिबरल नेशनलिज्म मतलब क्या होता है। व्हाट इज लिबरल का क्या मतलब होता है? लिबरल इज डेराइव्ड फ्रॉम द वर्ड, लैटिन वर्ड लिबर। लिबर का मतलब होता है बीइंग फ्री, ठीक है। तो व्हाट विल बी द लिबरल्स? हु विल बी द लिबरल्स? लिबरल्स विल बी द पीपल हु विल डिमांड फ्रीडम, यस और नो? फ्रीडम इन विच सेंस? किस सेंस में फ्रीडम उनको चाहिए? फ्रीडम इन सेंस ऑफ प्रेस, विथ रिस्पेक्ट टू प्रेस, फ्रीडम विथ रिस्पेक्ट टू formation of assemblies or organizations, क्योंकि ये जो जस्ट वेट, क्योंकि ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ था ब्रिटेन में, इससे एक न्यू मिडिल क्लास एमर्ज हुआ, और न्यू मिडिल क्लास वर्कर्स भी तो थे वहां पर जो काम करते थे फैक्ट्रीज में, तो उनको तो अगर वो अपना ट्रेड यूनियन, ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन नहीं कंस्ट्रक्ट करेंगे तो उनकी राइट्स को कौन सिक्योर करेगा, ठीक है। लिबरल्स वांटेड द प्रॉपर्टी राइट्स,
they wanted democratic government so that their voice will be listened. ठीक है, और लिबरल्स क्या चाहते थे? लिबरल्स वांटेड वोटिंग राइट्स फॉर ऑल. ठीक है, तो दीज वर फ्यू डिमांड्स ऑफ द लिबरल्स. दैट इज वाई व्हाट इज लिबरल नेशनलिज्म. और इसमें नेशनलिज्म क्यों लगा दिया हमने? बिकॉज दे ऑल वर द नेशनल्स, दे ऑल वर डिमांडिंग विथ रिस्पेक्ट टू द अपलिफ्टमेंट ऑफ द नेशन. ये सारे डिमांड अगर फुलफिल होंगे तो क्या होगा? इससे नेशन का डेवलपमेंट होगा. नेशन का जो इकोनॉमिक स्टेटस है, पॉलिटिकल स्टेटस है, सोशल स्टेटस है, ऑल ऑफ these status will grow. That is why this particular demands were also termed as liberal nationalism. और इसी में एक आपको पढ़ना है, 1834 में एक कस्टम यूनियन बनाया गया. ठीक है, 1834 में, इसी रिस्पेक्ट में 1834 में एक कस्टम यूनियन बनाया गया, जिस कस्टम यूनियन को हम लोग बोलते थे ज़ोल्वेरीन. इस बारे में पता है या नहीं? दिस वॉज द कस्टम यूनियन. कस्टम यूनियन का क्या मतलब होता है? देयर, इन लोगों ने डिमांड किया कि देयर शुड बी नो ट्रेड टैरिफ. देयर शुड नॉट बी एनी ट्रेड टैरिफ. ट्रेड टैरिफ क्या होता है? ट्रेड टैरिफ मतलब